आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क को एक नए तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे इन एन इजी मैनर, जहां पे वी हैव टू डू मिनिमम कैलकुलेशन और कई बार तो हम विदाउट यूजिंग पेन भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो टाइम एंड वर्क में सबसे कॉमनली आस्क्ड प्रॉब्लम क्या है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, which is the most frequently asked question, the most basic or the most easy question, let's say. So all of you would have seen this if you have ever solved time and work, right? Question is, A and B can finish a task working individually in 20 and 30 days respectively. In how many days can they finish it working together? So I have taken 5 questions, but फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इफ आई कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस अगेन, देयर इज अ पर्टिकुलर टास्क विच ए कैन डू इन 20 days alone, बी कैन डू इन 30 days alone. तो इफ दे वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दिस कैन बी डन? सो यूजुअली हमारा क्या अप्रोच होता है इसके लिए? यूनिट वर्क मेथड। तो हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट टोटल वर्क इज 1 and then we calculate A's work per day is 1 by 20 and B's work per day is 1 by 30. This is how we normally do, right? The reason is we take total work as 1 unit. So this is 1 by 20 is the 1 day work of A and 1 by 30 is the 1 day work of B. But in this case we have to deal with fractions. यहां पे हमें फ्रैक्शंस ऐड करने पड़ते हैं एंड इट टेक्स टाइम. सो टू अवॉइड दैट व्हाट वी विल डू इज, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30? इट इज 60. आई एम नॉट कवरिंग एलसीएम इन दिस वीडियो, मे बी इन सम अदर वीडियो आई विल बी कवरिंग, बट फॉर द मोमेंट लेट्स अज्यूम 20-30 का एलसीएम 60 है, ये आपको पता है. So rather than taking total work as 1 unit, I will be taking total work as 60 units. Now you can think of this total work as anything. It can be like reading 60 books, eating 60 chocolates. So let's, for ease of understanding, because some people will relate to it, right? Eating chocolates. So why not? Why not it can be eating chocolates? So let us say your total work is to eat 60 chocolates. You have to eat 60 chocolates. That is the total work. ठीक है? Now, going by the data given in the question, A can finish this work of eating 60 chocolates. A can eat 60 chocolates in 20 days. So how many chocolates can A eat per day? 60 chocolates in 20 days, 3 chocolates. And how many chocolates can B eat per day? 60 chocolates, 30 days means 2 chocolates per day. So what we have calculated is the efficiency of doing work by A and B. So A की efficiency ये है कि वो 3 chocolates per day he is having, और B की efficiency ये है कि he is having 2 chocolates per day. Now do I need to solve the question? Working together क्या होगा? So A plus B, they will eat 5 chocolates per day. So how many days they will take to complete the work? 60 by 5, 12 days. You got one answer. A eats 3 chocolates per day, B eats 2 chocolates per day. So together they will eat 5 chocolates per day. In 12 days, all the chocolates are over, so work is done. Let's go to the next question. Now they are working on alternate days. They are working on alternate days. It is not given who starts. So let me assume A is starting. Or let's say this is given in the question that A is starting. तो क्या होगा? So you will get a pattern like this: 3 plus 2 plus 3 plus 2 and so on. Correct? So now what will happen? Every 2 days, 5 chocolates are getting over, because you see such cycle will repeat. Okay, now every 2 days they are finishing 5 chocolates. Now it's very easy to calculate.
5 chocolates in 2 days, 60 chocolates, 5 chocolates in 2 days. How many times is 60 compared to 5? 12 times. So 2 into 12, 24 days. Why 24 days? 5 chocolates in 2 days. तो 5 chocolates अगर वो 2 days में फिनिश करते हैं तो 60 कितने टाइम्स है 5 का? 12 टाइम्स है. तो if the work increases by 12 times, the time taken will also increase by 12 times. So answer is 24. Or you can use unitary method also, no problem. But there is hardly any calculation, right? अगर मैं इसको सॉल्व नहीं भी करूं तो कैन यू सी हियर, अगर वो ए और बी अगर हर दिन साथ काम कर रहे हैं, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर एवरी डे, देन दे आर डूइंग इट इन 12 days. सो इफ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, आंसर डबल आएगा. तो यहां पे आंसर अगर 12 आया है तो इस क्वेश्चन में आंसर 24 ही आएगा. क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि ए और बी रोज साथ काम कर रहे हैं. अब जितना काम वो पहले एक दिन में कर रहे थे उतना ही काम वो 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं. तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. 12 into 2 24, या फिर ऐसे कर लेंगे. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉब्लम. हियर ए स्टार्ट्स अलोन एंड लीव्स आफ्टर 12 days. तो ए ने अकेले स्टार्ट किया एंड ए इज लीविंग आफ्टर 12 days. सो 12 days में ए ने कितने चॉकलेट फिनिश किए? 36 चॉकलेट्स ए ने फिनिश कर दिए. 12 days में ए ने 36 चॉकलेट्स फिनिश कर दिए. तो कितने चॉकलेट्स बचे? 24 चॉकलेट्स. ए ने 12 days में 36 चॉकलेट्स फिनिश कर दिए. तो कितने चॉकलेट्स बचे? 24 चॉकलेट्स. अभी बी को कंप्लीट करना है. तो बी कितना टाइम लेगा? बी ईट्स 2 चॉकलेट्स पर डे, 12 मोर पर डे. सो 12 days प्लस 12 days, 24 days. आंसर आ गया. बहुत इजी है कैलकुलेट करना. यहां पे क्या हुआ? ए ने 12 days में कितने चॉकलेट्स फिनिश किए? 12 3 36. तो कितने चॉकलेट्स बच गए? 24. अभी बी अकेले खाएगा. सो बी विल ईट 24 चॉकलेट्स at the rate of 2 chocolates per day in 12 more days. So 12 plus 12, 24. Let's see, उसका ही वेरिएशन है. Now this time B starts alone and leaves after 18 days. So 18 days में B कितने चॉकलेट्स फिनिश करेगा? 18 into 2, 36. फिर से अभी चॉकलेट्स कितने बचेंगे? रिमेनिंग चॉकलेट्स 60 minus 36 मतलब 24 चॉकलेट्स. नाउ ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग टास्क. तो ए कितना टाइम लगाएगा खाने के लिए? 24 by 3, 8 more days. So this time my answer will be 18 plus 8, 26 is the answer. Just to recap or repeat, B ने 18 days में 18 2 36 चॉकलेट फिनिश कर दिए. रिमेनिंग चॉकलेट्स बचे हमारे पास 16 minus 36 मतलब 24. अब इन 24 चॉकलेट्स को खाने के लिए A will take 24 by 3, 8 days. So the answer is 18 plus 8, 26. बहुत सिंपल है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है. मैं तो लिख रहा हूं, पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. और सॉल्व करने के लिए आप मेंटली बहुत नंबर्स जोड़ने हैं, मल्टीप्लाई करना है. फ्रैक्शंस ऐड करने में टाइम लगता है. नंबर्स 2 3 4 नंबर्स को जोड़ने में, मल्टीप्लाई करने में कोई टाइम नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता. ठीक है. अभी यहां का लास्ट क्वेश्चन. A and B start together and A leaves 5 days before completion. अभी इस क्वेश्चन में एरर होने का चांस है. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या सोचते हैं कि A and B start together and A leaves 5 days before completion. So what we assume कि अगर A और B साथ में स्टार्ट करेंगे तो वो 12 days में फिनिश करते हैं. ठीक है. A और B अगर साथ में स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन में फिनिश करते हैं? 12 days में. Now because A leaves 5 days before completion, so कई लोग सोच लेंगे कि A and B ने 7 days साथ में काम किया, because 12 minus 5 is 7. पर ऐसा नहीं हो रहा है. See, understand, if A and B work together from start to end, then they will finish in 12 days. तो यहां पे ये कहना कि A and B start together, तो वो 12 days में फिनिश करेंगे, तो 12 minus 5, 7 days पहले A निकल जाएगा, ये गलत होगा. तो यहां कैसे सॉल्व करेंगे? समझ रहे हो आप कि अगर 12 minus 5 7 से किया तो रॉन्ग हो जाएगा. तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा.
what we'll do is, ये A leaves 5 days before completion, ये बहुत की है. तो लास्ट के 5 डेज पे किसने काम किया है? लास्ट के 5 डेज पे किसने चॉकलेट खाए हैं? लास्ट के 5 डेज पे तो ए था नहीं, तो सिर्फ बी चॉकलेट खा रहा था. तो 5 डेज में बी कितने चॉकलेट्स खाएगा? 2 पर डे के हिसाब से. सो जो तुम्हारा लास्ट 5 डेज है उसमें बी कितने चॉकलेट्स खाएगा? 5 इंटू 2 10. तो लास्ट के 5 डेज में ये हमारे बी ने अकेले खाए. तो उससे पहले कितने चॉकलेट बचे? 60 माइनस 10 50. ये 50 चॉकलेट्स किसने खाया होगा? ए और बी ने साथ में खाया होगा, क्योंकि स्टार्ट से तो ए और बी ने स्टार्ट में काम करना शुरू किया था ना. दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. तो इसका मतलब ए प्लस बी स्टार्ट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने 50 बाई, और ए और बी साथ में कितना चॉकलेट खाते हैं एक दिन में? 5. 50 बाई 5 मतलब 10. तो लास्ट के 5 डेज में बी ने अकेले 10 चॉकलेट फिनिश किए, और उससे पहले ए और बी साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने 50 चॉकलेट्स 5 के रेट से 10 डेज में किए. तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 प्लस 10 15. हो सकता है आपको समझ में आया होगा. 5 चॉकलेट्स 5 डेज में 2 चॉकलेट्स के हिसाब से 10 चॉकलेट्स बी ने अकेले खाए लास्ट के 5 डेज में, बिकॉज ए हैड लेफ्ट 5 डेज बिफोर कंप्लीशन. और उससे पहले 50 चॉकलेट्स 5 के रेट से 10 डेज. सो आपने देखा आंसर 12 नहीं है, 15 डेज, क्योंकि कंप्लीशन से 5 डे पहले ए इज लीविंग, सो इट विल नॉट बी फिनिश इन 12 डेज, बट रादर इट विल टेक 15 डेज. करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टूड. If you understood, I'll be coming up with more videos, probably much more regularly. Please subscribe to my channel. Like the video. If you share it, it will help me. So do that. And have a very good day. Great day in fact, right?